देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଖୋଲିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆସନ୍ତା ମାସ 1 ଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲାଯିବ। ଏନେଇ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ପାଇଁ ଗତ ମେ 1ରୁ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଗ ଗହନରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳରବ, ନଦୀ କୂଳରେ ବଉଳ କୁମ୍ଭୀର ଶୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 5G ସେବା, କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 5G ଟେଲିକମ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ସହରରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାପରେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ 5G ସେବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହା ବେଶ୍ ଶସ୍ତା ଅଟେ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 3, ଆଉ ଉଡ଼ିବନି MiG-21, 2025 ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ହେବ ସେବା। ଆଗକୁ ଆଉ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବନି MiG-21 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। 1999 କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଓ 2019 ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ସଫଳ କରାଇଥିବା MiG-21 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଅବସର ନେବ। 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରୁ ସେବାନିବୃତ୍ତ ହେବ MiG-21 ବିମାନ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅବଶିଷ୍ଟ 3ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନକୁ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି MiG-21 ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ MiG-21କୁ ଭାରତୀୟ ସେନାରୁ ଅବସର ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ MiG-21 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 200 ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4, ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ। ଚଳିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଭାରତକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ମହିଳା ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଚାନୁ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ 49 କେଜି ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ସ୍ନାଚରେ ସେ ରେକର୍ଡ 88 କେଜି ଓଜନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ 87 କେଜି ଥିଲା, ହେଲେ କାଲି ସେ 88 କେଜି ଓଜନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସ୍ନାଚ୍ ଓ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ ଚାନୁ ମୋଟ 199 କେଜି ଓଜନ ଉଠାଇ ଭାରତର ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି। ଚାନୁ 2018 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। 2021ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ 49 କେଜି ବର୍ଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। 6ରୁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ଅଗଷ୍ଟ 5 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ 6ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 6ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଖରାଟିଆ ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ବିରତି ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 5 ଯାଏଁ ପାଗ ଏଭଳି ଶୁଖିଲା ରହିବ। ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖାର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ସହ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 6ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ଧାନ ରୁଆ ବେଉଷଣ ପାଇଁ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିବନି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର 2792ଟି ଗାଁ ମିଳିବ 4G ସେବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର 2792ଟି ଗାଁରେ 4G ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ 465ଟି ଗାଁ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରର ସର୍ବନିମ୍ନ 2ଟି ଗାଁକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 2792ଟି ଗାଁରେ ଏହି 4G ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ 4G ସେବା ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ 26,316 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁରି ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ 24,680ଟି ଗାଁରେ 4G ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର 4G ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପଲବ୍ଧ କରି BSNL ଏହି 4G ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ନମ୍ବର 7, କିମ୍ସ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। କିମ୍ସ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିମ୍ସ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଓ କିମ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କିମ୍ସର 300 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏଠାରେ ହୃଦରୋଗ ଚିକିତ୍ସା, କାର୍ଡିଓଥୋରାସିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାସ୍କୁଲାର ସର୍ଜରୀ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଏବଂ ହେପାଟୋଲୋଜି, ସର୍ଜିକାଲ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ଏବଂ କିଡ୍ନି ପ୍ରତିରୋପଣ, ୟୁରୋଲୋଜି, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି, ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ, ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜି,
क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एवं र्यूमाटोलॉजी, अस्थिशल्य, स्पाइनाल सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी आदि विभाग रही। एठारे अत्याधुनिक अस्त्रोपचार गृह, आईसीयू और अन्य अत्याधुनिक भित्तिभूमि रही। सेहीपरि 300 शଯ୍या विशिष्ट कैंसर सेंट्रल अंतर्जातीय मानर होईछि। नंबर 8 कलिंग हस्पिटाल रे खोलिबो 100 शଯ୍या विशिष्ट कर्कट केन्द्र। कलिंग हस्पिटाल रे मिलिबो विश्वस्तरीय अत्याधुनिक कर्कट चिकित्सा। एठारे 100 शଯ୍या विशिष्ट एक स्वतंत्र कर्कट यूनिट खोलिबाकू जाउछि, जोठारे समस्त प्रकार कर्कट रोगर निदान और चिकित्सा उपलब्ध होई परिबो बोली नूतन परिचालना दायित्व नैथिबा डॉक्टर एसके दास कहिसंती। आयोजित सांबादिक सम्मेलन रे श्री दास कहिथिले, कलिंग हस्पिटाल हेउछि राज्यर प्रथम घरोई हस्पिटाल, जहाँ दीर्घ 25 वर्ष धरी निरविच्छिन्न भाव में ओडिशावासी को स्वास्थ्य सेवा जोगई चली। कर्कट चिकित्सा पई रोगी राज्य बाहर जाई अनेक असुविधार सम्मुखीन हेउथिबारु कलिंग हस्पिटाल रे एक स्वतंत्र कर्कट यूनिट प्रतिष्ठा हेबाकू जाउछि। एठारे गोटिए छात तले अभिज्ञ डाक्तरंक द्वारा सर्जरी, रेडियोथेरापी और केमोथेरापी इत्यादि चिकित्सा उपलब्ध हेबो। नंबर 9 जयनारायण मिश्र नुआ विरोधी दल नेता। विरोधी दल नेता हेले संबलपुर विधायक जयनारायण मिश्र। काली राज्य बीजेपी पक्षरु तांको दलर विधायक दल नेता भावे घोषणा कर जाइछि। बीजेपी रो ओडिशा दायित्व थिबा सहप्रभारी तांको ना घोषणा करिसंती। विरोधी दल नेता चयन नहीं काली विधायक राज्यर वरिष्ठ नेतांक बैठक बसीथिला। बैठक में सर्वसम्मतिक्रमे जयनारायण मिश्रंक नाँ को चयन कर जाइथिला। जयनारायण मिश्र हेउचंती राज्य बीजेपी रो वरिष्ठ नेता। नंबर 10 चलित वर्ष ठारू कार्यक्षम हेब ओडिशा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। ओडिशा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं शिशु भवन छक एक सरकारी कार्यालय कार्य आरंभ करिछि। 2021 जुलाई मासरे विधानसभा रे ओडिशा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बिल पास होइथिला। एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रो डीन और प्रिंसिपल प्रोफेसर दत्तेश्वर होतांकु ओएसडी भाव में नियुक्ति कर जाइथिला। एहा मध्ये विश्वविद्यालय रो वेबसाइट कार्य आरंभ करा जाउछि। ओडिशा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय चलित वर्ष ठारू कार्यक्षम हेबो। विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा पई भुवनेश्वर सहर उपकंठरे 20 रु 25 एकर जागा आवश्यक थिबा बेले जागा चिन्हट पई एक कमिटी गठन कर जाइछि। भविष्य में यह एक स्वयं शासित उत्कर्ष केन्द्र भाव में प्रतिष्ठा कर सरकार पक्षरु निष्पत्ति ग्रहण कर जाइछि। नंबर 11 अगस्ट 5 रे प्रधानमंत्री बासभवन घेराव करिवो कांग्रेस। दरदाम वृद्धि और बेकारी समस्या को नहीं बड़ धरणर आंदोलन पर प्रस्तुत होउछि कांग्रेस। आसंता अगस्ट 5 तारिख में कांग्रेस पक्षरु देशव्यापी आंदोलन कराजिवो। एही बड़ आंदोलन समय दल संसदरु राष्ट्रपति भवन जाए शोभायात्रा करिवो। सेहीपरि कांग्रेस कर्मी माने प्रधानमंत्री बासभवन मध्य घेराव करने योजना करिसंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बासभवन घेराव रे कांग्रेस वर्किंग कमिटी और वरिष्ठ सदस्य माने सामिल हेबे। मिलिथिबा सूचना अनुसार कांग्रेस समस्त राज्यसभा लोकसभा सदस्य माने चलो राष्ट्रपति भवन शोभायात्रा रे सामिल हेबे। सेहीपरि राज्यगुड़िकर दलर विधायक, एमएलसी, पूर्वतन सांसद, वरिष्ठ नेता माने राजभवन घेराव करिवे। दलर समस्त नेता कर्मी को देशव्यापी अनुष्ठित होबाकु थिबा आंदोलन रे सामिल हेबाकू कांग्रेस पक्षरु निर्देश दिया जाइछि। समस्त आंदोलन रे सामिल होई सामूहिक कोर्ट अरेस्ट हेबाकू मध्य दल कहिछि। नंबर 12 लिज ट्रस ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेबार संभावना 90%। रिपोर्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद पर भारतीय वंशोद्भव ऋषि सुनक और लिज ट्रसक मध्य चलिथिबा प्रतियोगिता चूड़ांत पर्यायर पहुंची। एबे उभय प्रार्थी देशर विभिन्न अंचल बुली निज सपक्ष में समर्थन जोगाड़ करुछंती। कंजर्वेटिव दलर सदस्यों समर्थन जोगाड़ करिबारे सेमाने एबे व्यस्त अछंती। ऋषि सुनक भारतीय वंशोद्भव होइथिबारु से प्रधानमंत्री हुअंतु बोली भारतीय माने स्वप्न देखुछंती, किंतु हावा काहा सपक्ष में रहिछि। इंग्लैंड रो बेटिंग एक्सचेंजर संस्था स्मार्केटर्स पूर्वानुमान अनुसार हावा धीरे धीरे लिजंक सपक्ष में बहिबा आरंभ करिछि। से प्रधानमंत्री हेबार संभावना प्राय 90% थिबा बेले ऋषि संभावना मात्र 10% रहिछि। नंबर 13 निज दरमा बढ़ाइबाकू दाबी कले सबु दलर विधायक। विधानसभा रे सबु दलर विधायक काली मिलित भावे निजर दरमा भत्ता वृद्धि करिबा पई दाबी करिसंती। विधायक माने दरमा वृद्धि पई दाबी करिबा परे बाचस्पति विक्रम केसरी आरुख एहा उपरे विचार करिबाकू राज्य सरकारक परामर्श दैछंती। एबे प्राय 1 लाख टंका दरमा और निज निर्वाचन मंडलीर विकास पई 3 कोटी टंकार हाथपांठी पाउथिबा विधायक मानक दरमा दाबी को नहीं साधारण रे चर्चा आरंभ होईछि। काली शून्यकाल रे विधायक माने एकजुट होई दरमा वृद्धि पई दाबी उपस्थापन करिथिले। नंबर 14 थाना रे हाजर हेले बाबूसान। मामला प्रत्याहार करिवे पत्नी तृप्ति। पत्नी तृप्ति देइथिबा एतला आधार रे शनिवार बाबूसान खारबेल नगर थाना रे हाजर होइथिले। बाबूसानक सह तांको मां अपराजिता महांती और पारिवारिक बंधु रवि मिश्र मध्य खारबेल नगर थाना जाइथिले। पुलिस बाबूसानक प्राय 1 घंटा काल पचराउचरा करिथिला। अन्य पक्षरे पत्नी तृप्ति शतपथी बाबूसानक नारु मामला प्रत्याहार करिवे बोली सूचना दैछंती बाबूसानक पारिवारिक बंधु रवि मिश्र। समाधान बाट बाहरिछि। खूब शीघ्र तृप्ति केस प्रत्याहार करिवे बोली से कहिछंती।
होइछंती सेहीपरि काली जन्मदिन रे बाबूसान मध्य फोन रे तृप्तिଙ୍କ सह कथा होइछंती। नंबर 15 एमआरपी ठू बेसी दर रे बिक्री हेउछि मद मानिले मंत्री। राज्य रे एमआरपी ठू अधिक दर रे मद बिक्री हेउछि एपरि कि मद दोकानी माने रसीद देउनाहांती। मद दोकानी माने निजर मनोमुखी कारबार चढ़ैथिबा बेले राज्य अबकारी विभाग सेमानक सह सलासूत्र जोगु ग्राहक निजर अधिकारु वंचित हेउछंती। राज्य रे एमआरपी ठू अधिक दर रे मद बिक्री हेउछि बोली काली विधानसभा रे अबकारी मंत्री अश्विनी कुमार पात्र स्वीकार करिथिबा बेले 2022-23 आर्थिक वर्षर प्रथम 6 मासरे 31 टी एभଳି मामला रुजु कर जाइछि ओ सेथिरु मात्र 8 टी मामला फैसला होइछि ओ बाकी 23 टी केस विचाराधीन रहिछि बोली कहिसंती। तेबे एमआरपी ठू अधिक सामग्री अधिक दर रे बिक्री हेबार नियम नथिबा बेले मद किभଳି एही दोकानी माने बिक्री करूछंती ओ ग्राहकक अभियोग उपरे त्वरित कार्यानुष्ठान नेबाकू सरकार काहेकि एते टाळमूळ नीति अवलंबन करूछंती ताहा स्पष्ट। नंबर 16 नुआ छाड़ी पुराण अबकारी नीति लागू करिवे दिल्ली सरकार। दिल्ली रे नुआ छाड़ी एबे पुराण अबकारी नीति लागू हेबो। नुआ अबकारी नीति को फेरई नेबाकू दिल्ली रो केजरीवाल सरकार निष्पत्ति नैछंती। नुआ अबकारी नीति प्रचलन उपरे सीबीआई तदंत लागि उपराज्यपाल सुपारिश करिबा परे दिल्ली सरकार एभଳି निष्पत्ति नैछंती। दिल्ली रे क्षमतासीन आम आदमी पार्टीर नुआ अबकारी नीति को नहीं मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल मध्य मतभेद देखा मिली। एने राज्य बीजेपी पक्षर राजरास्त विक्षोभ कर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बासभवन आगे भी विक्षोभ कर भितर नुआ अबकारी नीति को नहीं सीबीआई जांच कराऊ बोली दिल्ली उपराज्यपाल परामर्श देइथिले। एसबु भितर सांबादिक सम्मेलन कर राजधानी दिल्ली रे मदर खुचरा बिक्री नहीं पुराण अबकारी नीति लागू हेबो बोली काली घोषणा करिसेंती मनीष सिसोदिया। यह आसंता सोमवार ठारू लागू कराजिबो बोली उपमुख्यमंत्री कहिसेंती। नंबर 17 दिल्ली रो देवघर विमान उड़ेले बीजेपी सांसद। झारखंड देवघर ठारू दिल्ली एवं दिल्ली ठारू देवघर को सीधा सड़क विमान सेवा आरंभ होईछि। इंडिगोर 180 आसन विशिष्ट विमान दिल्ली रू उड़ाण करी संध्यारे देवघर पहुंचीथिला। तेबे बड़ कथा जे एही विमान को बीजेपी सांसद उड़ेइथिले। बिहार साधारण लोकसभा निर्वाचन मंडली रू सांसद थिबा राजीव प्रताप रूढ़ी और कैप्टेन आशुतोष शेखर एही विमान पायलट थिले। एठारे उभय एयरबस A320 एवं बोइंग 737 विमान उड़ाण अवतरण करि परिबो। गो पक्षरु कहुଯାଇଛି जे नंबर 6E6191 देवघर को प्रतिदिन यातायात करिबो। एही विमान दिन गोटाए दिल्ली रु छाड़ी दिन 2:45 रे देवघर पहुंचिबो। सेहीपरि यह दिन 3:15 रे देवघर छाड़ी अपराह्न 5:20 रे दिल्ली रे पहुंचिबो। नंबर 18 महाराष्ट्र राज्यपाल बयान को नहीं विवाद रागिले मराठा। विवाद रे महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक बयान को नहीं आरंभ होइछि हंगामा। मुंबई रे मराठा माने रास्ता को ओह्लैछंती। एथिसह राज्यपाल विरोध में नाराबाजी करिसेंती। एक कार्यक्रम रे राज्यपाल कहिसेंती जे जदि गुजराती एवं राजस्थानी को मुंबई एवं थानरू हटई दिया जाए तेबे एठारे टंका अभाव पड़ीजिवो। आर्थिक राजधानी बोलौथिबो मुंबई रु एही ट्याग हटिजिवो। राज्यपाल ए बयान रु तुम्बी तोफान आरंभ होइछि। शिवसेना नेता संजय राउत कहिसेंती जे राज्यपाल जेपरि कहिसेंती ताहा बेस निंदनीय। महाराष्ट्र लोक माने मुंबई पई रक्त झाड़ बोहुछंती। सबु जिनिस को टंका द्वारा ओजन कर जाय नाही। राज्यपाल ए बयान को पूरा राज्य क्रोधित होई उठिछि। समस्ते तांको मंतव्य को निंदा करुछंती किंतु एपर्यंत बीजेपी और मुख्यमंत्री चुप अछंती। नंबर 19 राज्यर विभिन्न कोर्टे पड़ी रही 18.79 लाख मामला। राज्यर तल कोर्ट आरंभ कर हाइकोर्ट पर्यंत मोट 18,79,226 मामला विचाराधीन रही। काली विधायक सौम्यरंजन पट्टनायक प्रश्नर लिखित उत्तर में मंत्री श्री सारका कहिसेंती जे हाइकोर्ट अनुमोदन पाइबा परे जनसाधारण मामला गुड़िकर तुरंत फैसला करने निमंते राज्यर समस्त ब्लॉक स्तर में पर्यायक्रमे गोटे गोटे सिविल तथा जेएमएफसी कोर्ट खोलिबा पई राज्य सरकार विहित पदक्षेप मान ग्रहण करुछंती। हाइकोर्ट रे 2022 जुलाई 25 तारिख सुधा मोट 5,836 टी सिविल केस और 4,493 टी क्रिमिनाल केस विचाराधीन रही। तड़ कोर्टे 2022 जून 30 तारिख सुधा मोट 15,518 टी सिविल केस और 1,02,172 टी क्रिमिनाल केस विचाराधीन रही। विचाराधीन थिबा मामला गुड़िकर त्वरित विचार करने हाइकोर्ट राज्यर समस्त जिला जज मानू चिठी माध्यम आदेश देइछंती। नंबर 20 गुजरात दंगा मामला तीस्ता शीतलवाड़ जमीन नामंजूर। सामाजिक कर्मी तीस्ता शीतलवाड़ और पूर्वतन पुलिस अधिकारी आरके श्रीकुमार समस्या दिनक दिन बढ़ी चली। शनिवार दिन गुजरात एक कोर्ट उभय जमीन आवेदन नामंजूर करिसेंती। अहमदाबाद सेसन्स कोर्ट अतिरिक्त प्रिंसिपल जज डीडी ठक्कर उभय जमीन आवेदन नामंजूर करिसेंती। 2002 गुजरात दंगा मामला रे केतेक निरीह लोकंकु फसैबा मामला रे तांको विरोध रे गुजरात एसआईटी तदंत करुछि किंतु उभय ए अभियोग को अस्वीकार करिसेंती। एही मामला रे उभय को मासक तळे गिरफ कर जाइथिला। नंबर 21 अरब मरुभूमि रे बन्या यूएई रे 7 मृत।
अरब मरुभूमि रे प्रबल वर्षा जोगु बन्या आश्चर्य मने होउथिले भी सत। अरबर विभिन्न देश में गत किछि दिन में होइथिबा प्रबल वर्षा विगत अनेक वर्षर रेकर्ड भांगिछि। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बा यूएई रे होइथिबा बन्या रे 7 जण प्राण हराइथिबा जणा जाइछि। मृत्युवरण करिथिबा समस्त 7 जण जाक प्रवासी बोली जणा पड़िछि। यूएई रो केतेक अंचल शारजा, फुजेरा, रस अल खमैरा रे प्रबल वर्षा जोगु बन्या होइछि। समग्र यूएई रे वर्षा हेबा एक विरल घटना बोली कह जाए, किंतु गत किछि दिन हेला पूर्व यूएई रे एते वर्षा होइछि जे ताहा गत 30 वर्षर रेकर्ड भांगी देइछि। एही वर्षा फଳରେ सहरांचल रे बन्या होइछि। रास्ता गुड़िक बन्या पानी प्रभावित हेबारु कार गुड़िक भासुथिबा देखा जाइछि। सेहीपरि घरे पानी पशिबाकू लोकमाने प्रभावित होइछन्ति। नंबर 22 पुणी इराक संसद में धसई पशिले शताधिक लोक। श्रीलंका भली स्थिति इराक रे देखिबाकू मिलिछि। एठारे शताधिक लोक बागदाद रे थिबा देशर संसद में धसई पशिछन्ति। जणे सिहा धर्मगुरुंक प्ररोचना रे लोकमाने एभली कांड भिहैछन्ति। एहाकू मिसई चलित सप्ताह रे द्वितीय थर पई साधारण देशर संसद रे एभली धसई पशिछन्ति। काली शताधिक लोक संसद भवन रे पशिबा बेले सेमानक अटकाइबा पई इराकर सुरक्षाकर्मी माने शत चेष्टा करिथिले। स्थिति अणायत्त हेबारु सुरक्षाकर्मी माने बाध्य होई आंदोलनकारी उपरको लोहबुहा ग्यास माड़ करथिले। सेहीपरि साउंड बोमा माड़ करथिले। या द्वारा एकाधिक लोक आहत होइछन्ति। लोकंक विक्षोभ जोगु योजना मुताबक संसद अधिवेशन अनुष्ठित होई पारिनी। लोकंक आंदोलन जोगु सांसद माने हॉल मध्य प्रवेश करि पारि नाहंती। नंबर 23 कार्बी ग्रुपर 110 कोटी टंकार संपत्ति सीज कला ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड 110 कोटी टंकार मूल्यर संपत्ति जबत करिछि ईडी। ग्रुपर जमी, बिल्डिंग, नगद टंका, विदेशी मुद्रा अलंकार को मिसई मोट 110 कोटी टंकार संपत्ति जबत कर जाइछि। केएसबीएल ओ यार सीएमडी कोमानुदुर पार्थसारथी नाँ रे पीएमएलए अनुजाई ईडी मामला करिथिला। कालीर 110 कोटी टंका संपत्ति पूर्वरु ईडी एही मामला रे 1984.84 कोटी टंकार संपत्ति जबत करिथिला। एथिसह पार्थसारथी ग्रुपर सीएफओ हरिकृष्ण को गिरफ मध्य कर जाइथिला। एठारे सेमाने जामिन रे अछंती। कार्बी ग्रुप बेआईन भावे तार कर्मचारी शेयर देखई 28 कोटी टंका ऋण हेरफेर करिथिला। एही घटना सामनाक आसिबा परे हैदराबाद पुलिस प्रथमे एफआईआर करिथिले। घटनार तदंत चलिथिबा बेले ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामला रुजु करिथिला। नंबर 24 पीएफआई को निषिद्ध करिवार समय आसीछि। सर्वधर्म सम्मेलन रे संकल्प। पपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआई विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवार समय आसी जाइछि बोली काली अनुष्ठित सर्वधर्म सम्मेलन रे मत प्रकाश पाइछि। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभालଙ୍କ अध्यक्षतार होइथिबा ई सम्मेलन रे विभिन्न धर्म संप्रदायर प्रतिनिधि माने जोग देइथिले। एही सम्मेलन रे राष्ट्र विरोधी कार्य रे लिप्त संगठन पीएफआई और अन्य संगठन गुडी को निषिद्ध करिवाकू संकल्प गृहीत होइछि। एही अवसर रे डोभाल कहिसंती जे केतेक संगठन देश रे धर्म ना रे संघर्ष सृष्टि करिवाकू उद्यम करूछंती। सेमाने एपरी एक वातावरण सृष्टि करुछंती जहा द्वारा देशर प्रगति व्याहत होउछि। यह द्वारा देश को प्रभावित करुछि। ऑल इंडिया सूफी सजादानसी काउंसिल पक्षरु एही सम्मेलन आयोजन करा जाइथिला। नंबर 25 राज्यगोष्ठी क्रीडा रे भारत को प्रथम पदक देले संकेत। राज्यगोष्ठी क्रीडा रे भारत को मिली प्रथम पदक। देश पई 55 केजी भारोत्तोलन वर्ग रे रौप्य पदक जीतिछंती संकेत महादेव सागर। से मोट 248 केजी ओजन उठे बर्मिंघम रे भारतर टेक रखिछंती। से स्नाच रे 113 केजी ओजन उठैथिबा बेले क्लीन एंड जर्क रे 135 केजी ओजन उठैछंती। एही वर्ग रे मालेशियार बिन मोहम्मद अनिक स्वर्ण पदक जीतिछंती। से मोट 249 केजी ओजन उठैछंती। से स्नाच रे 107 केजी और क्लीन एंड जर्क रे 142 केजी ओजन उठैछंती। नंबर 26 महिला टीटी टीम रो विजय धारा जारी। गोयना को भी 3-0 रे हरैला। राज्यगोष्ठी क्रीडा रे भारतीय महिला टेबुल टेनिस टीम रो विजय धारा जारी रही। अभिज्ञ मनिका बात्रा को टीटी टीम ग्रुप पर्यायर तृतीय मैच को एकतरफा भाव जीति नहीं। तृतीय मुकाबिला रे भारत प्रतिपक्ष गोयना को 3-0 रे परास्त करिछि। एहा पूर्वरु दल दक्षिण आफ्रिका और फिजी को समान 3-0 रे परास्त करिथिला। 4 वर्ष तले गोल्ड कोस्ट राज्यगोष्ठी क्रीडा रे भारतीय टीटी टीम स्वर्ण जीतिथिला। एही टाइटल को बजाय रखिबा पई दल एथर लक्ष्य रखिछि। एबे ग्रुप पर्यायर भारत 3टी मैच रु 3टी विजय सह शीर्ष रे रहिछि। 2टी विजय सह गोयना द्वितीय स्थान रे रहिछि। नंबर 27 राज्यगोष्ठी क्रीडा रे भारत को द्वितीय पदक देले गुरुराजा पुजारी। राज्यगोष्ठी क्रीडा रे भारत को मिली द्वितीय पदक। भारोत्तोलन रे गुरुराजा पुजारी भारत पई जीतिछंती ब्रोंज पदक। यह पूर्वरु 55 केजी भारोत्तोलन वर्ग रे संकेत महादेव सागर भारत पई रौप्य पदक जीतिथिले। एबे गुरुराज 61 केजी वर्ग रे ब्रोंज पदक हासिल करिछंती। गोटिए दिन रे भारत को 2टी पदक मिलिबारु चारियाडू 2 खेलाड़ी को शुभेच्छा सुओ छुटिछि। कर्नाटक रो गुरुराजा पुजारी 61 केजी वर्ग रो स्नाच रे 18
केजी ओजन उठाइथिले। सेहीपरि से क्लीन एंड जर्क रे 151 केजी ओजन उठाइछंती। एहाकु मिसेई मोट 269 केजी ओजन उठाई गुरुराज देश पई ब्रोंज पदक जीतिछंती। नंबर 28 प्री क्वार्टर रे भारतीय बॉक्सर मोहम्मद हसमुद्दीन। राज्यगोष्ठी क्रीडार प्रथम मुकाबिला निजर दम देखिछंती भारतीय बॉक्सर मोहम्मद हसमुद्दीन। से 57 केजी वर्गर प्री क्वार्टर फाइनल रे प्रवेश करिछंती। कालीर राउंड 32 मुकाबिला रे मोहम्मद हसमुद्दीन दक्षिण अफ्रिकार अम्जो लेले डिंग को 5-0 रे परास्त करी परवर्ती राउंड रे प्रवेश करिछंती। अम्जो लेले विरोध में भारतीय बॉक्सर हसमुद्दीन पंच और पादर मुवमेंट बेस चमत्कार रही। एथिपाई से 5 जन विचारपति सर्वसम्मति क्रमे विजयी होइछंती। एबे क्वार्टर फाइनल रे निजर स्थान पक्का करिबा पई हसमुद्दीन बांग्लादेशर मोहम्मद सलीम हुसैन को भेटिबे। नंबर 29 जिम्बाब्वे सीरीज पई घोषणा हैला टीम इंडिया फेरिले दीपक चहर। आसंता 18 तारिख आरंभ होउथिबा जिम्बाब्वे विपक्ष 3 टिकिया दिनिका सीरीज पई काली भारतीय दल घोषणा कर जाइछि। वेस्टइंडीज विपक्ष दिनिका सीरीज भड़ी जिम्बाब्वे रे मध्य टीम इंडिया कमांड संभाळिबे शिखर धवन। सेहीपरि आईपीएल पूर्व आहत होइथिबा दीपक चहर एबे सुस्थ होई सारिछंती। तेणु तांको जिम्बाब्वे विपक्ष दिनिका सीरीज रे शामिल कर जाइछि। फर्म पर संघर्ष करुवा विराट कोहली जिम्बाब्वे विपक्ष दिनिका सीरीज खेलिबे बोली कह जाउथिला, किंतु तांको 15 जणिया स्क्वाड रे शामिल कर जाइनी। सेहीपरि रविंद्र जाडेजा को मध्य जिम्बाब्वे विपक्ष सीरीज रे विश्राम दिया जाइछि। युजवेंद्र चहर मध्य दल रे नाहंती। कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर जिम्बाब्वे विपक्ष सीरीज रे सुजोग पाइछंती। नुआ मुह भावे राहुल त्रिपाठी को भारतर दिनिका स्क्वाड रे शामिल कर जाइछि। नंबर 30 महिला हॉकी रे भारतर बड़ विजय घाना को 5-0 रे हरैला। राज्यगोष्ठी क्रीडार महिला हॉकी रे भारत बड़ विजय अभियान आरंभ करिछि। शुक्रवार पूल ए रो निजर प्रथम मैच रे सविता नेतृत्वाधीन भारत 5-0 गोल रे घाना को परास्त कर भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।